Assalamu alaikum, dears. Welcome to our talk about functionalism and teaching. Functionalist theory. We will talk about what is functionalist theory, principles of functionalism, implications of functionalism for teaching and learning. Further, we will be talking about emphasis on social order and stability, promotion of socialization, focus on curriculum development, role of teachers as agents of socialization, recognition of social inequality, preparation for role allocation and social mobility, critical analysis of social institutions. First of all, what is functional or what is functionalist theory? Functionalist theory is a sociological perspective that views society as a complex system composed of various parts working together to promote stability and solidarity. So functionalist theory जो है ये एक सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में डेवलप हुई है जो ये समझती है कि सोसाइटी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स को इकट्ठा काम करना है ताकि इसमें स्टेबिलिटी आए और सॉलिडारिटी यानी यूनिटी आए. बी पार्ट इज डेवलप्ड प्राइमरीली बाय इमली दुरखाइम. इमाल दुरखाइम ने इसको 19th सेंचुरी के आखिर में और 20th सेंचुरी के शुरू में कंसीव किया. फंक्शनलिज्म emphasizes the interdependence of social institutions and their roles in maintaining social order. जो दुरखाइम है जिसमें फंक्शनलिज्म को पेश किया वो सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंटरडिपेंडेंस पर एम्फेसिस करता है, उसकी बात करता है और इसका जो रोल है सोशल ऑर्डर यानी समाजी इस्तेकाम के लिए उस पर बात करता है. सी पार्ट इज इट्स मेन फोकस इज हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. तो इसका मेन फोकस जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है इसका मेन फोकस इस बात पर है कि डिफरेंट अदारे किस तरह सोशल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके. नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनलिज्म. देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन. Functionalists argue that different parts of society are interdependent and contribute to overall functioning of the system. So बिल्कुल जिस तरह एक इंजन के सारे पार्ट एक जो है वो हार्मोनी से वर्क करते हैं तभी इंजन चलता है, इस तरह सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट भी हार्मोनी में वर्क करते हैं तभी सोसाइटी फंक्शनल होती है. 2 is stability. Functionalist theory emphasizes the importance of social order and stability in promoting the well-being of society. So, functional theory emphasize करती है social order पर और stability पर ताकि सोसाइटी स्टेबल वे से वर्क कर सके. और एक हमने सोसाइटी में वेल बीइंग के कॉन्सेप्ट को भी फरोग देना होता है. जो सोशल ऑर्डर है और स्टेबिलिटी थ्रू वेलबीइंग जो है वो एम्फेसिस है, प्रिंसिपल है फंक्शनलिज्म का. सी इज अडेप्टेशन. Societies must adapt to changes in their environment to maintain stability and ensure continued functioning. So societies क्योंकि हालात और चेंज होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, बाकी मामलात की वजह से, तो सोसाइटी को नए हालात के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना होता है ताकि वो जिंदा रहे और फलती फूलती रहे. Now we come to the implications of functionalism for teaching and learning. First, emphasis on social order and stability. Second one is promotion of socialization. Third is focus on curriculum development. 4 is role of teachers as agents of socialization. 5 is
Recognition of social inequality. 6. Preparation for role allocation and social mobility. 7 is critical analysis of social institutions. Let us discuss all these 7 points one by one. Emphasis on social order and stability. Functionalism suggests that education plays a vital role in maintaining social order and stability for transmitting shared values, norms and beliefs. तो जो फंक्शनलिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन का एक बड़ा अहम रोल है सोसाइटी को तरतीब में रखने में और स्टेबल रखने में। कैसे भला? बाय ट्रांसमिटिंग शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीफ्स, क्योंकि ये मुआशरे में सब एक जैसी शेयर्ड वैल्यूज को ट्रांसमिट करते हैं, शेयर्ड नॉर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं और शेयर्ड बिलीफ्स को ट्रांसमिट करते हैं। सोसाइटीज में कॉमनैलिटीज हों तभी वो सोसाइटी यूनाइटेड रह सकती है। मसलन कंट्री के लव फॉर कंट्री जो है वो एक बड़ा जज्बा है जो कंट्रीज को यूनाइटेड रखता है। BS teachers may emphasize the importance of social cohesion and cooperation in their classrooms, fostering a sense of community among students. So टीचर जो है वो एम्फेसिस करते हैं समाजी कोहिजन की, मिलजुल को रहने की अहमियत की और कोऑपरेशन की अहमियत की क्लासरूम्स के अंदर, ताकि कम्युनिटी का एक अच्छी जो है वो सेंस तलबा में जो डेवलप हो, यानी तलबा जो हैं वो जो कम्युनिटी को एक अच्छे तरीके से फोस्टर करने की, बनाने को सीखें या ये सेंस उनमें डेवलप हो। एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। जो फंक्शनलिज्म है वो रोल ऑफ एजुकेशन को बड़ा अहम समझता है ताकि इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन हो सोसाइटी की नाम से मुतालिक और सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है इससे मुतालिक, यानी सोसाइटी के अंदर किन असूलों पर तालिब इल्म ने जिंदगी गुजारनी है फ्यूचर में और सोसाइटी की उससे तोक़ुआत क्या है, ये अहम मकसद है तालीम का। BS टीचर्स में इंटेंशनली इनकॉर्पोरेट लेसन्स एंड एक्टिविटीज दैट हेल्प students develop social skills, cultural awareness and a sense of citizenship. So teachers शौरी तौर पर ऐसी एक्टिविटीज लेसन प्लान में और टीचिंग में डालते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सोशल स्किल्स डेवलप हो, कल्चर से अवेयरनेस बेटर हो और उनका जो एक एहसास है अच्छे शहरी होने का ये फले फूले। 3.3 is focus on curriculum development. Functionalists suggest that the curriculum should reflect the needs of society and prepare students for their roles in the workforce and society at large. So functionalism suggest करता है कि करिकुलम का मकसद ही ये है कि वो सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करे और तालिब इल्म को तैयार करे कि वो फ्यूचर में सोसाइटी जो उन्हें रोल देती है, जो सोशल हैं और जो इकोनॉमिक हैं, जॉब की सूरत में उनके लिए तैयार हो। टीचर्स में डिजाइन करिकुला दैट एम्फसाइज कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सिविक एजुकेशन टू मीट सोसाइटल नीड्स। सो करिकुलम के अंदर जो है वो कोर एकेडमिक सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, साइंसेज हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स शामिल होती है, सिविक एजुकेशन, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, ये करिकुलम का पार्ट होते हैं और इनको डेवलप करना तालिब इल्मों में मकसूद होता है। 3.4 इज रोल ऑफ टीचर्स एज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अगर सोशलाइजेशन होनी है तो टीचर्स ने ही तो करवानी है तलबा में। फंक्शनलिज्म व्यूज टीचर्स एज इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हु ट्रांसमिट नॉलेज, वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स टू स्टूडेंट्स। सो जो टीचर्स हैं उनका अहम रोल है ताकि वो इल्म, वैल्यूज और कल्चरल नॉर्म जो है अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसमिट करें। टीचर्स में कॉन्शियसली मॉडल डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड attitude, serve as role models for students and promote social integration within the class। तो टीचर्स को जो तलबा को बनाना चाहते हैं वो उन्हें खुद बनना होगा। जो बिहेवियर्स और एटीट्यूड वो स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना चाहते हैं उन्हें अपने सरापा में उसको फिर
उनको डिस्पोज करना होगा, डिस्पोजिशन में लाना होगा, दिखाना होगा, तभी देखकर तालिब इल्म सीखेंगे। तो जो टीचर तलबा को बनाना चाहते हैं वो पहले खुद बन के दिखाएं, तभी तलबा बनेंगे। 3.5 इज रिकॉग्निशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। While functionalism tends to emphasize social stability, it also acknowledges the existence of social inequality. अगरचे फंक्शनलिज्म का काम ही सोशल स्टेबिलिटी को डेवलप करना है, कोहिजन को डेवलप करना है, सॉलिडारिटी को डेवलप करना है, यूनिटी को डेवलप करना है, ताहम फिर भी ये मुआशरे में मौजूद नाहमवारियों को एक्सेप्ट करता है। बी एज टीचर्स मे बी अवेयर ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड opportunities among students and strive to address these disparities through differentiated instruction, support services and advocacy for marginalized groups. So टीचर्स अवेयर होते हैं कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज बराबर तकसीम नहीं हैं, जिनके पास कम है, जहां डिस्पैरिटी है, उनके लिए वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए भी तैयार रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं और उनकी सपोर्ट को सोसाइटी में मोबिलाइज करने के लिए भी तैयार रहते हैं। 3.6 है प्रेपरेशन फॉर रोल एलोकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। तालीम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तालिब इल्मों को फ्यूचर के रोल्स के लिए तैयार किया जाए और सोशल मोबिलिटी की जाए, ताकि जो सोसाइटी के लोअर साइड पर लोग हैं उनको एजुकेट करके अपर साइड पर भेजा जा सके। आइए देखते हैं स्लाइड क्या कहती है। फंक्शनलिज्म सजेस्ट दैट एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर देयर future roles in society and can facilitate social mobility. So education उनको future role के लिए तैयार करती है और social mobility के लिए effort करती है। B. Teachers may help students develop knowledge, skills and credentials needed to pursue their chosen career paths and achieve upward mobility. टीचर हेल्प करते हैं कि स्टूडेंट के पास इल्म आए, महारतें आए, क्रीडेंशियल आए यानी डिग्रीज आए, ताकि वो मुआशरे ने जो उनके लिए रोल चुना है उसे निभा सके और सोसाइटी में ऊपर की तरफ मूव कर सकें, यानी सोशल मोबिलिटी कर सकें। लास्ट वन 3.7 इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। फंक्शनलिज्म encourages critical analysis of social institutions and their roles in maintaining social order। तो फंक्शनलिज्म इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को कि मुआशरे में डिफरेंट अदारों का जो रोल था उससे एवेल्युएट करे, उनको मशवरा दे, आवाज उठाए, ताकि हर अदारा अपना अपना काम करे, दूसरे का ना कर रहा हो। Number 2 is teachers may engage students in discussions about the functions and dysfunctions of educational institutions, encouraging them to think critically about the broader societal implications of education। टीचर स्टूडेंट को engage करते हैं डिस्कशन में और फंक्शन में और डिसफंक्शन में, यानी मुल्की इदारे कौन से ठीक काम कर रहे हैं, कौन से ठीक काम नहीं कर रहे, और उन्हें सोचा जाता है, उन्हें इनकरेज किया जाता है तो कि वो क्रिटिकली सोचे, सोल्यूशन की तरफ जाए, ताकि जो तालीम की ब्रॉडर इम्प्लीकेशन सोसाइटी के सुधार में हो। इन दिस टॉक विच वाज अबाउट फंक्शनलिस्ट थियरी, वी डिस्कस व्हाट इज फंक्शनलिस्ट थियरी, principles of functionalism, implication of functionalism for teaching and learning. We discussed emphasis on social order and stability, promotion of socialization, focus on curriculum development, role of teachers as agents of socialization, recognition of social inequality, preparation for role allocation and social mobility, critical analysis of social institutions. Thank you very much for being with me. See you in the next talk.